So from where do you know about us? How do you know about us? Who doesn't follow D2C with Arjav? अच्छा ओके गॉट इट ओके नहीं वो इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा वो हमें रिसेंट 6 months में रियलाइज हुआ है दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड गाइस ऑन इन द ज्वेलरी कैटेगरी 100% मजा आने वाला है जस्ट द प्रॉब्लम इज कि गाइस हमारे पास ना बैंडविड्थ नहीं है बिकॉज आरजव इज हैविंग अ बैंडविड्थ क्रंच नॉट द डिजी साइडकिक Are you available tomorrow? फॉर द ऑफलाइन मीट द बेस्ट पार्ट इज गाइस कभी भी किसी भी क्लाइंट को किसी भी अपॉर्चुनिटी को मना मत करो since the branding is happening because of Arjav, every brand who gets on board want to work only and only with Arjav. कि Arjav आप कितना टाइम दोगे हमारे ब्रांड को? Now this is the bright side. Now I tell you the dark side. Yeah, Good bhai, I'm good. very well. Arjav, we are considering performance marketing को outsource करने का. Okay. We've been in the business for 14 years now, Wow. and we're one of the earliest D2C brands that the country's seen. I'm aware. And you're aware? Yeah, I'm aware. I know the brand About also. us? Yeah, of course. Who hasn't heard about you guys? I hope you're not just saying to please me. No, it's not true. Actually, so I'll tell you. So, like you must know, we also work a lot in D2C, right? So Yeah. every second brand that comes to me says like, taking a reference for. That's why I know you guys a lot, and I've done a lot of competition analysis about you. So अच्छा. yeah, know you guys a क्या lot. क्या मिला competitive analysis में? See, price points are killing, no doubt about it. Right? I think you guys have. So honestly, the moment you message, I also opened the website. I think it's been a year I opened it. But you guys have evolved a lot in terms of branding. That's what I love the most. Earlier, it was a very product-led business, I believe. Right now, it looks very brand-led also. The way the products are placed and everything. So that is for sure. We have done a great work. Rest. Creative side में see art library doesn't tell the whole story but diversification मैंने कम देखा है honestly I think वो काफ़ी ज़्यादा और हो सकता है तो but yeah I'll able to give you a better overview once I'll get into the data. तो ये दो चीजों के बीच में we are evaluating कि क्या what will be the right move for us because we are at a place where we can grow very quickly. We've got a lot of opportunities at hand in terms of अभी तक हम we are purely D2C now. We've got deals with all the marketplaces obviously also. obviously yeah. तो अब हम उस पर भी फोकस करना चाहते हैं. That is why we're looking at So options. got it. So I'll tell you very honestly since we have so you got my reference from Ishan Arora right? No, I didn't get your reference from Ishan Arora. I reached out to your team. I think आपको business. अच्छा Ishan Malviya got it yeah, Ishan yeah. Malviya. Yeah, Got it, he got gave me a number. Got Yes. it. So from where do you know about us? How do you know about us? Who doesn't follow D2C with Arjav? अच्छा okay got it okay. तो मतलब following you for a while and spoke to a couple of guys, agencies. I reached out to a few agencies. We were just trying to figure out who's the best partner for us because you work with a lot of D2C brands. So I thought it'd be great if we can, explore digital. So ठीक है then so I'm sure budgets do you handle, Arjav? the biggest budget is 7.5 CR a month right now. ठीक है. And that is active 7.5. Active 7.5. ठीक है. I'll just speak with and I'll arrange a call between the two of you. ठीक है. We are based out of Gurgaon. Okay. So Great. if it works out, you can come down to our office. We can have a chat and of course. take this forward. Are you available tomorrow? For the offline meet. No, for a Online ना हाँ let's have a first Google meet ठीक है works. No problem. So I'll just speak with, check with him what time is he available. I'll check with you again and then we'll arrange a call. Yeah चलो perfect. ठीक है. Great. Okay, Thank you. Bye. So
this is one of the biggest brands guys on in the jewelry category. 100% मज़ा आने वाला है. And just the problem is कि guys हमारे पास ना bandwidth नहीं है. We have very low bandwidth right now. And because recently I onboarded Underneat, जो कोशा कपिला का brand है. We onboarded some more brands. And मेरा bandwidth बहुत जा रहा है. So we'll only onboard them after a point of time for sure. Maybe a month or 1.5 months. Because हम hiring नहीं करेंगे. So that will be extremely bad. A reason of me not hiring the team and just onboarding them is because वो भी कर सकते हैं. It's extremely easy. But reason of not doing that is because we are in a consultancy business. And my time initially is very, very, very important for the brand's onboarding. So we have been very honest with the business all the time. So I think I don't think we should be chasing the brand onboarding, because the moment we do that, we are doing injustice to the current brands. So yeah, Baki very exciting. So this is the biggest brand in the jewelry category. So and when he said who doesn't follow Arjav, तो अच्छा लगा. Okay guys, so last 3 days बहुत ज़्यादा busy रहे मेरे, because हमने एक ही दिन पे it's a quick commerce brand और Underneat जो कोशा कपिला का ब्रांड हमने ऑनबोर्ड किया मंडे को. आज है थर्सडे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन मेरे कहाँ गए आई रियली डोंट नो. और जैसे कि आपने कल वाली कॉल पे सुना, द ब्रांड नेम इज़, और ये मतलब दे आर द गॉड फादर्स ऑफ द D2C ब्रांड, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ब्रांड है इंडिया का. अब टुडे वीडियो इज नॉट टू फ्लॉन्ट कि हमने इन ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया. आई टेल यू द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. एंड ये ना बहुत दिस इज वन प्रॉब्लम विच वी वर अवेयर. नहीं, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा वो हमें रिसेंट 6 months में रियलाइज हुआ है. तो देखिए, एंड इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस और वांट टू रन द बिजनेस, इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज 2 तरह की हर बिजनेस की पोजिशनिंग होती है. वन इज अ कॉर्पोरेट वन वेर यू मेक योर बिजनेस ब्रांडेबल, वन इज अ पर्सनल ब्रांडिंग वन वेर यू मेक योर सेल्फ एज अ पर्सनल ब्रांड. दोनों ही बहुत प्यारे बिजनेस मॉडल्स हैं, दोनों के ही अपने अपने प्रोज हैं, बट अपने अपने कॉन्स भी हैं. सो मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा पहले, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज अ प्रॉब्लम. सो सी, आवर कंपनी नेम इज Digi Sidekick एंड आई रन अ इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो नेम D2C with Arjav. हमारा कोर बिजनेस है मार्केटिंग एजेंसी फॉर D2C ब्रांड्स. 4 साल से हम इस कंपनी को रन कर रहे हैं. एंड पहले 2 साल मेरी कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं थी. देयर वाज नो D2C विद Arjav, इट वाज ओनली Digi Sidekick. फिर 2 साल बाद हमने सोचा कि एक इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं जहाँ पे हम D2C की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत अच्छी साइट्स थी. फॉर्चुनेटली बिकॉज द डेटा वाज एक्सट्रीमली गुड, हमारा वो पेज बहुत अच्छा पिक किया. कितना अच्छा पिक किया मैं अगर आपको बताऊँ, द टॉप D2C ब्रांड्स इन इंडिया ऑलमोस्ट 70 to 80% फॉलोज अस. एंड कितना हाई क्वालिटी, आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम्स बट आई टोल्ड दिस अगेन बिकॉज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट. नन अदर देन मिस्टर पीयूष बंसल फ्रॉम लेंसकार्ट फॉलोड अस. ही अप्रोच्ड अस ओनली फ्रॉम दैट इंस्टाग्राम इटसेल्फ. उसकी वजह से हो गया. और मैं अपने पोर्टफोलियो के अगर टॉप 15 ब्रांड निकालूंगा तो टॉप 15 में से 14 ब्रांड होंगे जो इंस्टाग्राम से आए और 1 ब्रांड होगा जो उन ब्रांड्स के रेफरेंस से आया. ठीक है ना. सो it has eventually helped us a lot. Now this is the bright side. Now I tell you the dark side. अब सी, एक है Digi Sidekick, that's a company. अब पहले 2 साल में क्या होता था, जब एक बिजनेस ऑनबोर्ड होता था ना, तो लेट्स से मेरी सेल्स टीम ने अगर उसको ऑनबोर्ड किया, उस समय हमारी सेल्स टीम थी एजेंसी के लिए, वो इवेंचुअली हमारी ऑपरेशनल टीम से मिली, ऑपरेशनल टीम से बात करना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया, स्टार्टेड. दे डोंट नो हु इज Arjav. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर Arjav टू सिट इन द मीटिंग्स. नाउ व्हाट हैपेंस, since the branding is happening because of Arjav, every brand who gets on board want to work only and only with Arjav. Now Arjav has his own bandwidth. Okay, I start working at 9, it's 9:38 right now. My work ends at 9:30 and 10 every day almost. So it's a like 12-13 hour shift. और इसके अंदर देयर आर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई एम डीलिंग विद. अब जब भी कोई नया ब्रांड आता है ना, तो फर्स्ट थिंग दैट दे वांटेड टू हैव ऑन अ कॉल इज, आई विल अटैच वन कॉल ऑल्सो, कि Arjav आप कितना टाइम दोगे हमारे ब्रांड को. नाउ सी, देयर आर, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई डू ऑनबोर्डिंग्स. जब एक ना बहुत क्रिटिकल ब्रांड आ रहा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक क्विक कॉमर्स ब्रांड ऑनबोर्ड हो जिसमें 60 मिनट में डिलीवरी होती है एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर,
उस सिटी के अंदर मल्टीपल पिन कोड्स हैं, मल्टीपल डार्क स्टोर्स हैं, हर डार्क स्टोर पे एक अलग अलग इन्वेंट्री है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल है। एंड ऑफ कोर्स मेरा इन्वॉल्वमेंट वहाँ जाएगा। अंडरनीथ ऑन बोर्ड हुआ, वेरी हाई स्टेक बिजनेस, मेरा इन्वॉल्वमेंट जाएगा। नाउ एंड द ब्रांड क्लियरली सेड ऑन द कॉल कि आर्जव, वी नीड योर टाइम, वी नीड यू टू बी आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड आई विल शो यू जब मैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता हूँ तो क्या होता है। थोड़ा इंटरनल है बट आई शेयर यू माई, दिस इज हाउ माई कैलेंडर लुक्स लाइक। तो अगर आप देखोगे मंडे भी ऑन बोर्डेड, सबसे पहले 4 बजे अंडरनीथ का कॉल हुआ, 5 बजे का कॉल हुआ, दैट क्विक कॉमर्स ब्रांड। 10 तारीख अगेन के साथ फिर कॉल हुई, शाम को 3 बजे स्टार्ट हुई, 5 बजे खत्म हुई। उसके बाद 11 तारीख को नहीं, मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज जो ये येलो ब्लू कलर का आप मीटिंग स्लॉट देख रहे हो ना, सिर्फ क्लाइंट के साथ है। मंडे को ब्रांड ऑनबोर्ड होता है, मॉर्निंग एट दिस टाइम आई वाज सेटिंग विद बोथ द टीम्स इंटरनली, टेलिंग अबाउट कि आज हमें डिस्कस क्या करना है, कौन सा डेटा प्रिपेयर करना है। फिर दोनों ब्रांड्स के साथ मीटिंग हुई। ट्यूसडे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी बिकॉज हमें पूरा ऑडिट करना था, तो मॉर्निंग का सारा टाइम चला गया और उसके बाद शाम का टाइम मीटिंग में चला गया। 5 बजे के बाद हम लोग अंडरनीथ की टीम के साथ इंटरनल बैठे बिकॉज अगले दिन अंडरनीथ की टीम के साथ मीटिंग थी एंड फाउंडर ऑफ अंडरनीथ वाज आल्सो कमिंग येस्टरडे। अभी तक अंडरनीथ के फाउंडर से मेरी बात नहीं हुई थी, इसलिए वो मीटिंग और क्रिटिकल बनी। अच्छा जी, मीटिंग स्टार्ट होती है, 4 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई एंड ट्रस्ट मी वो मीटिंग इतनी डिफिकल्ट थी और इतने हार्ड टोन पे स्टार्ट हुई थी, बट इवेंचुअली उसका टोन बहुत पॉजिटिव गया बिकॉज हमने डेटा बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था। उसके बाद से मीटिंग नहीं हुई और 6:30 से लेकर हम रात को 9:30 बजे तक हम लोग इंटरनली बैठे हुए थे नॉर्थ पे, एंड इन ऑल द मीटिंग्स आई वाज देयर। एंड सर ये तो सिर्फ मेरा टाइम है, ऑन द टॉप ऑफ इट जो टीम बैठ के बाद में डेटा बनाती है मेरे अलावा, वो और ज़्यादा है, यू नो। सो माइन इज दिस, द 2 स्लॉट, सिटिंग विद द टीम एंड इवेंचुअली सिटिंग विद द क्लाइंट। टीम का 3 स्लॉट है, मेरे साथ बैठना, क्लाइंट के साथ बैठना और इवेंचुअली उस काम को एग्जीक्यूट करना, और चौथा स्लॉट भी होगा उस काम को प्लान करना। तो इतना टाइम जाता है जब हम एक ब्रांड को ऑनबोर्ड करते हैं, एंड इतना ऑनेस्टली वो टाइम जाना भी चाहिए। अगर इतना ऑनेस्टली वो टाइम नहीं जाएगा 110%, हम उस क्वालिटी की सर्विस भी ब्रांड को डिलीवर नहीं कर पाएंगे इवेंचुअली। नाउ आफ्टर दिस ऑन ट्यूसडे इवनिंग आई हैड अ कॉल। Now this is where the problem starts. The brand sale is in front of me. The brand can get onboarded. I can onboard brand, but Arjav is having a bandwidth crunch, not the Digi Sidekick. Digi Sidekick के पास आज भी स्पेस है, पर Arjav के पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड इतनी नहीं है, मतलब I'll put some stories. Yesterday evening, like I left the office at 11, and I'll post some Instagram story which I posted. तो मतलब दिस इज द ब्रिम दैट आई एम वर्किंग ऑन। अब अगर मैं किसी भी ब्रांड को ऑनबोर्ड करूँगा, पहले मैं इन दोनों ब्रांड के साथ गलत करूँगा एंड देन फिर मैं जो मैं नया ब्रांड ऑनबोर्ड कर रहा हूँ उसके साथ तो 100% गलत होगा ही होगा। गलत क्यों होगा? बिकॉज ऑफकोर्स मेरी भी एक बैंडविड्थ है, मैं उनको प्रॉपरली वो टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो नाउ दिस इज वेयर द डिसीजन कम्स इन। द बेस्ट पार्ट इज गाइज, कभी भी किसी भी क्लाइंट को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मना मत करो। सेइंग नो इज अ वेरी वेरी बिग डिसएडवांटेज। ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा डिले करो। नाउ वट एवर बिग ब्रांड कम्स इन फ्रंट ऑफ अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से द ब्रांड दैट कॉल्ड मी यस्टरडे, हम मना नहीं करेंगे, हम बोलेंगे 1 महीना आराम से मीटिंग्स लेंगे, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को बनाएंगे एंड देन 1 महीने बाद जाके ऑनबोर्ड करेंगे जब हमारे करंट ब्रांड्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो एंड दिस इज हाउ द इवेंचुअली द बिजनेस विल फंक्शन बिकॉज ऑफ व्हाट? Because of Arjav's bandwidth, and which is very very wrong. Because यार मेरी bandwidth की वजह से बिजनेस की ग्रोथ रुक रही है एंड आइडली कोई बिजनेस ऐसे फंक्शन नहीं करना चाहिए। बट अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बिजनेस बना रहे हो, ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा 110% होगा। बिकॉज इवेंचुअली नाउ द पीपल दैट आर कमिंग इवेंचुअली ट्रस्ट Arjav more than the brand name Digi Sidekick. And that's a very big problem. So this year how we are tackling this is we are moving into the direction of consultative leadership. हम इस साल हमारा idea is not to expand exponentially जो हमने लास्ट 2 साल से किया है। इस साल हमारा आइडिया है हम अपनी टीम को बहुत मेच्योर करें in terms of knowledge, in terms of leadership, in terms of consultation, in terms of client handling. Because जिस pace पे the organization is growing, the team also has to grow with that same pace. So and that's a very big task in itself. जिससे कि जब एक ब्रांड मेरे से बात करे या फिर मेरी टीम से बात करे, वो सेम होना चाहिए। They should not feel that gap.
यू शुड नॉट फील दैट डिफरेंस. कल अगर कोई भी बड़ा ब्रांड DS में ऑनबोर्ड हो, आरजव का रिक्वायरमेंट उसमें नहीं होना चाहिए. आरजव शुड help them, mentor them, guide them, but should not do this 110% what I just showed you. Because अगर ये होता रहेगा 100%, the growth rate will be extremely low. And ये पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा लॉस है कि आपकी इनिशियली ग्रोथ बहुत फास्ट हो सकती है, बट एक पॉइंट के बाद आप स्टक हो जाओगे, गारंटी स्टक हो जाओगे. एंड मैं बहुत क्रिएटर से मिला हूँ, मतलब आई हैव टॉक टू मेनी डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटर्स, आई हैव टॉक टू मेनी फैशन क्रिएटर्स. ये ब्रिम आता ही आता है. ये ब्रिम इसलिए आता है क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और उस लिमिटेड टाइम में आप कितना ही काम कर लोगे. सो या दिस वीडियो वाज अबाउट चूजिंग द डायरेक्शंस. एज एन इंडिविजुअल यू कैन चूज बोथ. पर्सनल ब्रांडिंग आई हैव शोड यू. अगर आप दूसरा साइड भी चूज करते हो कंपनी ब्रांडिंग, इसका बस एक ही छोटा चैलेंज है, इट टेक्स टाइम. यू नो दैट ट्रस्ट बिल्डिंग टेक्स टाइम. अभी आपने देखा होगा आज की तारीख में सारे फाउंडर्स आजकल पॉडकास्ट बना रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, शार्क टैंक पे जा रहे हैं. अब अगर ओरिजिनल 5-6 शार्क्स को हटा दे तो बाकी सारे शार्क्स पैसे दे रहे हैं शार्क टैंक पे जाने का. क्यों? क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग है. हमने लेंसकार्ट के साथ काम किया है. लेंसकार्ट में हमने देखा है कि जब शार्क टैंक एयर होता है तो लेंसकार्ट का भी सेल बढ़ जाता है. वहाँ पे पीयूष बैठ के चश्मे ऑफकोर्स नहीं सेल कर रहे हैं ना, बट स्टिल बिकॉज यू नो पीपल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू मिस्टर पीयूष बंसल, दे ऑल्सो वॉन्ट टू गेट कस्टमर टू द लेंसकार्ट. तो ये 100% काम आता ही आता है. बट अगर कंपनी साइड आप जाते हो, और ऐसा नहीं है कि कंपनीज बिल्ड नहीं हुई ना, इन्फोसिस कितना बड़ा बन गया, राइट? एंड यू नो मिस्टर नारायण मूर्ति आई थिंक केम इनटू द पिक्चर आफ्टर अ व्हाइल. वो ही वाज नॉट अ कंटेंट क्रिएटर एंड ही वाज नॉट क्रिएटिंग कंटेंट लाइक दिस, राइट? तो ऐसा नहीं है बिजनेस नहीं बनते, ऑफकोर्स बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बहुत सॉलिड बनते हैं, बट एज एन इंडिविजुअल इट्स योर चॉइस कि आप कौन सा डायरेक्शन ले रहे हो. एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस, बिकॉज ऐसे वरना कैलेंडर के टन बचता रहेगा और आप you'll be highly packed with the work. And again guys, see, the problem is not having a busy schedule. I'm more than happy to being in this schedule and having that timelines. What just scares me is the growth. Ki how to grow at that pace, because we are not, and we have to. We have been growing at a very good pace from the last 4 years, but this year will be the year of not growing that fast, because I know this problem. And क्योंकि ब्रांड्स का स्केल बड़ा होता रहेगा, एंड द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द आरजव एंड द टीम विल कीप ऑन गेटिंग हाई. सो या दिस ईयर इज गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ईयर. एंड मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें प्लान करी हैं एक्चुअली. सो अभी हम एक एक्सलेंस सेशन भी लेंगे ऑफ द एंटायर टीम. उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट सोचा है. So yeah, stay tuned. I'm sure you'll also like it. So thank you for watching the video till the end. I hope you like it. Take care and have a nice day. Tata. Bye bye.